हाँ जी सर। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग अभी चैप्टर नंबर 4 के एग्जीबिशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, टेस्ट योर नॉलेज प्लस इलस्ट्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ अ टोटली वीडियो रेलेवेंट फॉर द May 22, November 22 and onward students, because I covered amendment also. First one. Second is I will cover the ICI module test your knowledge questions and examples. So it will be very beneficial. That is, it is one thing very important. We know all the concepts, but ultimately question practice is very much important. And sometimes we see in our exam paper same questions put it in ICI material, and in exams we feel little bit confidence. So for this reason, I am uploading the all test your knowledge questions and illustrations of the module in one platform. Because of so many teachers also have uploaded their videos, but they maintain the all videos regarding their book, and which is very much okay. But ultimately the ICI modules and some illustrations, some questions of ICI module is very much important. And if we don't have much time, we can't consider the so many long videos, 3 hours, 4 hours and 5 hour videos for the particular chapters. It is a very beneficial that you will cover your ICI module questions with a very less time. So क्वेश्चन क्वांटिटी यस ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, न्यू जो एडिशन क्वेश्चंस हुए हैं हम लोग इतने सारे नहीं कर रहे हैं. सो इट कैन बी रीज़न दैट कि वी विल नॉट डूइंग दी. बट अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं और अगर हम 5 आवर्स का वीडियो भी नहीं देख सकते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. जनरली यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए मैं इसको बहुत ही स्पीड नहीं कर सकती. हम लोगों को आदत होता है 1.5 2x पर जाकर देखने का और माइंड उसे कैप्चर करता है. तो आप लोग जो है इस वीडियो को और ज़्यादा शॉर्ट बना सकते हैं. सो दैट फॉर द रीजंस आई cleared all the things whatever I want to say, that I want to clarify. That's why you should see the video, because of some time now we see the ICI modules and someone is speaking, we don't want to see, because of we have so many colorful videos, colorful notes and video also, and so many teachers. But trust me, the lectures will be very beneficial for you. And second things, also I uploaded the revisions. I just focus on the revision with less time, because time is a money and time is a key. One day before the exams हमें रियलाइज़ होता है कि टाइम की वजह से हमारे कई सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो ब्रशअप नहीं होते. सो फॉर द पर्टिकुलर रीजंस मैंने ये रिकॉर्ड किया है सेशन, जिससे आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उस चीज़ को लेकर कि हाँ एटलीस्ट हम कुछ ना करें, इससे अच्छा कुछ कवर कर ले, कंसेप्ट कवर कर ले. रिवीजन वीडियोस है बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट प्रिपेयर कर रखा है. एग्जामिशन वाला रिवीजन आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 1.5 आवर का है, लेकिन आप उसे जो है वो 30 to 40 मिनट्स कर सकते हो. ये आपके पास सोल्यूशन है. देन स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर्स के टेस्ट योर नॉलेज एंड इलस्ट्रेशंस. मैंने सबको इस तरीके से बता रखा है. आपको सारे कीवर्ड्स पता है हाईलाइट हो जाते हैं, जैसे कुमाऊं मंडल है, हज कमेटी है, ये सारे रिवीजन वीडियो में कवर है, यहाँ कवर नहीं होगा. ये देखिए लाइक दिस, बिकॉज यहाँ कवर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको तो सिर्फ क्लिक करके वहाँ जाना है. एक बार एक एग्जाम्पल करवाऊँ ताकि आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्पल्स क्या पूछ रहे. क्या एग्जाम्पल्स अच्छे हैं तो हम सारे एग्जाम्पल करवा लेंगे. Healthy nursing homes specialize is undertaking plastic surgeries. One such surgeon is conducted to repair clipped lip of a newborn baby. In view of the above definition, plastic surgery are not included in healthcare services. However, plastic surgery conducted to repair a clipped lip will be included in healthcare services as it reconstructs anatomy or
functions of body affected due to congenital defects. Okay, done. Which means इन्होंने हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ बता रखा है कि ये होता है, ये नहीं होता है. ऑल इज़ ओके. एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल करवा देती हूँ. चलिए, आज एग्जाम्पल भी हो ही जाए. एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन भी करवा लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है. एग्जाम्पल से शायद आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए. एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लाई नॉट लेविएबल. जस्ट गिव मी 2 मिनट. यस, सो बात हो रही है एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लाई नॉट लेविएबल टू टैक्स आर अल्कोहलिक लीगल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स namely petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel. तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते, इनका ये कहना है. सही बात भी है. और ये 5 नाउन. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. Service by way of transfer of a going concern as whole or as an independent part thereof. Exemption है. Service by way of renting of residential dwelling for as residence. Services provided by the central government, state government, union territory or local authority where the consideration for such service does not exceed 5,000 rupee. Services provided to the central government, state government, union territory under the insurance scheme for which total premium is paid by the central government, state government, union territory. तो सर्विस प्रोवाइडेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट और जहाँ सारा का सारा प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी सेंट्रल. अच्छा, 6th 7th. Services provided to the central government, state government, union territory administration under any training program for which total expenditure is borne by central government, state government, union territory administration. Services by the Employee State Insurance Corporation to persons governed under the Employee State Insurance Act 1948. Services provided by the Insurance Regulatory and Development Authority of India to insurer under the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act 1999. ये उन्हीं को एलोबरेट करके दे रखा है, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ भी मिस किया है क्योंकि सारे एलोबरेशन जो है ना हमने कर रखे डिस्क्रिप्शंस. तो आई थिंक ये सब डबल बार रिपीट हो रहा है मेरे हिसाब से. यहाँ इलस्ट्रेशंस इन्होंने नहीं दे रखे. आ जाओ आप क्वेश्चन आंसर पर. यस सर. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आइए. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इंट्रा स्टेट सर्विसेज आर एग्जिम्ड फ्रॉम द जीएसटी. तो आपको बताना है कि ये जो इंट्रा स्टेट है वो क्या एग्जिम्ड है. लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय BMC एंड पार्टनर्स दिल्ली, अ पार्टनरशिप फर्म टू एडवोकेट. एक लीगल सर्विस की फर्म ने एडवोकेट को सर्विस दी. टू वास्तुकार एंटरप्राइजेज दिल्ली प्रोवाइडेड आर्किटेक्ट सर्विसेज विथ. फर्म ऑफ एडवोकेट ने क्या करी, एक आर्किटेक्ट को सर्विस करी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख था. तो आपको भी पता है अगर किसी का टर्नओवर जो है वो एग्जिट कर जाता है और फिर उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जो होता है बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करती है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप बताइए. हाँ, क्या कहेंगे कि सर जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगी क्योंकि उसका टर्नओवर जो है वो एग्जिट कर रहा है थ्रेशोल्ड से. नेक्स्ट, मिनिमम बैलेंस चार्ज कलेक्टेड बाय धनवर्षा बैंक फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर. तो मिनिमम बैलेंस चार्ज कलेक्टेड बाय धनवर्षा बैंक
मिनिमम जो आप उनसे बैलेंस चार्ज करते हो कलेक्शंस, तो क्या उस पर बैंक, तो ऑब्वियसली जो चार्जेस होते हैं उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, तो यहाँ आरसीएम बता दिया आपने, ये भी बता दिया। इसका आंसर चेक करवा दूँ मैं आपको। द आंसर इज यस सर। क्या आंसर है? Services provided by a partnership firm of advocate or an individual as an advocate other than a senior advocate by way of legal services to a business entity with an aggregate turnover up to such amount in the preceding financial years make it eligible for exemption from registration. Exemptions from GST notification दे रखा है. Since the given case services are being provided by the partnership firm of advocate BMC and partners to a business entity, है ना. Vastukar Enterprises whose aggregate turnover is preceding financial year exceeding 20 lakh rupee, that is the exemption not available. Second is service by way of extending deposit loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount other than interest involved in credit card services are exempt from GST. तो ध्यान रखना, इन्होंने बोला है कि कोई भी डिपॉजिट लोन और एडवांसेस की सर्विस जो बैंक देता है इस सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटिंग बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, और इस पर आपको जो भी हम आपको इंटरेस्ट देते हैं डिस्काउंट देते हैं अदर देन क्रेडिट कार्ड, है ना. क्रेडिट कार्ड वाला हम जो है वो आपको जीएसटी में एग्जिम्पशन नहीं देते, बाकी हम देते हैं. आर एग्जिम फ्रॉम जीएसटी वाइड एग्जिम्पशन. However, service charges, fees, documentation fees, brokerage fees, administration charges, entry charges, or other like fee or charges collected over and above interest on loan, advance and deposit are not exempt. तो हमने भी यही बताया था कि भाई जो चार्जेस होते हैं, और क्यों आपको पता होना चाहिए, अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में काम किया है तो आपको पता होगा कि बैंक, या फिर आपने अपना बैंक का स्टेटमेंट देखा होगा तो आपको पता होगा कि बैंक चार्जेस अगर 15 रुपये कटा है तो उस पर क्या होगा, जीएसटी कटा हुआ होगा, है ना. इसीलिए इन व्यू ऑफ द अबाउ मिनिमम बैलेंस चार्ज कलेक्टेड बाय धनवर्षा बैंक फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर आर नॉट एग्जिम्प्ट. ठीक है, तो वो जीएसटी में टैक्स लायबल हो जाएंगे. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये इंटरेस्ट लोन एंड एडवांसेस का कोई इंटरेस्ट या डिस्काउंट है तो फिर आप कहोगे वो एग्जिम्प्ट है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. Shiva Medical Center, a multi-specialty hospital, is a registered supplier in Mumbai. It hires senior doctors and consultants independently without entering into any employer-employee agreements with them. These doctors and consultants provide consultancy to the patients who are admitted to the hospital for treatment. Without there being any contract with such patients, in return, they are paid the consultancy charges by Shiva Medical Center. ठीक है, तो इन्होंने इन पेशेंट हु आर एडमिटेड द हॉस्पिटल्स विदाउट हैज कॉन्फ्लिक्ट विद सच पेशेंट, इन रिटर्न they are paid the consultancy charges by Shiva Medical Centers. However, the money actually charged by Shiva Medical Centers from the inpatient is higher than the consultancy charge paid to the hired doctor and consultant. पता ये कह रहा है कि हमने क्या किया. देखो हॉस्पिटल में ऐसा होता है, जनरली होता है. ये पर्सन है, ये एडमिट हुआ, ये हॉस्पिटल है. हॉस्पिटल क्या करता है, बाहर से डॉक्टर को हायर करके हॉस्पिटल में लाता है और इसको सर्विस देता है. तो यहाँ से अगर इसने उसको 100 रुपया दिया होगा तो यहाँ ये इससे 120 लेता है, तो क्या जीएसटी लगता है? नहीं लगेगा. बस यही चीज़ पूछ रहा है. द डिफरेंस अमाउंट रिटेन, अब ये बोल रहा है कि जो डिफरेंस अमाउंट जो थी वो रिटेन बाय द हॉस्पिटल है. दैट इज रिटेंशन मनी इंक्लूड्स चार्जेस फ्रॉम प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज लाइक हमने तुम्हें नर्सिंग केयर्स दी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी रहने के लिए, ठीक है, पैरामेडिक्स केयर दी, इमरजेंसी सर्विसेज, चेकिंग ऑफ
टेम्परेचर्स, वेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, मतलब ये कुछ भी बता रहे हैं, मतलब किया होगा इन्होंने इसलिए इतना सब कुछ बता रहे हैं कि इसलिए हम आपसे 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं. The department took a stand that senior doctor and consultant are provided services to Shiva Medical Limited and not to the inpatient. Hence, their service are not the healthcare services and must be सब्जेक्ट टू जीएसटी. तो हम उन्हें बताएंगे सर ऐसा नहीं है. अगर कोई सीनियर डॉक्टर भी हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है तो उसे भी एग्जिम्प्ट माना जाएगा. पक्की बात है. यस. फर्दर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द रिटेंशन मनी केप्ट बाय शिवा मेडिकल सेंटर्स. तो देखो किसी पर नहीं लगने वाला कोई पैसा. यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द स्टैंड टेकन बाय डिपार्टमेंट इज करेक्ट. तो हम डिपार्टमेंट को बोलेंगे भाई डिपार्टमेंट पहले थोड़ा सा अच्छा सा जीएसटी पढ़ के आइए. ठीक है, पढ़िए क्या लिखा होगा. नो, द स्टैंड टेकन बाय द डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट. क्यों करेक्ट नहीं है. Services by way of healthcare services by a clinical establishment and authorized medical practitioners and paramedics are exempt from GST via exemption notification. Healthcare services have been defined to mean any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognized system of medicines in India and includes services by way of transportation of patients to and from a clinical establishment but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developments, abnormality, इंजरी और ट्रॉमा. इन्होंने सर्कुलर बताया था और बाद में इन्होंने इसको क्लेरिफाई किया. ठीक है. नेक्स्ट, वेदांत हॉस्पिटल गुरुग्राम has its own restaurant. Annapurna Bhavan is the basement which supplies food to its patients admitted in the hospital. As per the advice of the doctor, a nutritionist, Annapurna Bhavan also supplied food to other patients. Focus the word other मतलब कि जो इन पेशेंट नहीं है. देखो दो तरह के होते हैं. एक तो आपको बताया था इन पेशेंट जो एडमिट है. अदर मतलब जो विजिट के लिए आ रहे हैं. ठीक है, हु आर नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडेंट्स और विजिटर्स, जो भी उनके साथ आ रहे वो भी. द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल एंड नथिंग इज आउटसोर्स टू एनी थर्ड पार्टी वेंडर्स. Vedant Hospital is of the view that all services provided by a clinical establishment are exempt from GST and thus it is not liable to pay any tax. You are required to test the correctness of the view taken by Vedanta Hospital. तो हम कहेंगे हे Vedanta Hospital, you are the wrong. Why you are the wrong? Because of you are giving services to patient including in or other, but exemptions are related to only inpatients. If you are giving services to inpatient is exempt, but if you are giving the services to the other patients which is not admitted in the hospitals regarding the food services या फिर visitors को, तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो क्या होगी, जीएसटी में टैक्सेबल होगी क्योंकि इन पेशेंट को फूड देना ही एग्जिम्ट है. पक्की बात है. तो ध्यान रखना कभी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो पेशेंट को ऐसे समझना कि भाई वो पेशेंट नहीं है. ठीक है, बोलोगे वो क्या है फिर. वो इन है या वो अदर है, बस इसी से डिफाइन होगा आगे की बातें. नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर ऑर्गेनाइज अ प्लेसमेंट ड्राइव फॉर द स्टूडेंट्स studying in the campus. Many multinational companies register for placement program and pay the registration fee of 1 lakh rupee. कौन पे कर रहा है रजिस्ट्रेशन फ़ी? रजिस्ट्रेशन फ़ी कंपनीज पे कर रही है. IIM इंदौर is of the view that
Such consideration received from multinational companies for participating in the placement program is exempt from GST. Explain whether the view taken by the IIM इंदौर is correct. Of course not correct, क्योंकि आपने भी पढ़ा है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशंस जैसे IIM है यहाँ, ठीक है, अगर कोई IIM जो है वो क्या कर रहा है, वो प्लेसमेंट के लिए अपने स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है तो हम कहेंगे कि वो एग्जिम्ट है। लेकिन यहाँ वो क्या कर रहा है, कंपनी से पैसा ले रहा है, तो यहाँ पर वो GST में आएगा। डन। नेक्स्ट, इंडिया कॉरपोरेशंस लिमिटेड अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU हैज़ टेकन लोन फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी। लोन लिया, वेलनेस बैंक लिमिटेड। द लोन वॉज गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Indian Corporation Limited defaulted in the repayment of such loan. Examine whether the services of guaranteeing the loan by the central government in the given case is liable for GST। तो आपको भी पता है, अगर PSU के बिहाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, गारंटी देता है, तो वो एग्जिम्ट है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली या स्टेट गवर्नमेंट? मैंने बोला जब मैं सेंट्रल बोलूँ तब स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सब मान लेना। ब्रिटिश हाई कमीशन चीफ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम लोकेटेड इन इंडिया is providing advisory services to the students willing to travel to UK for further study. The mission has organized a seminar for such students and the registration fee 5,000 per student has been charged from the students for the same. You are required to determine whether the advisory services provided by British High Commissions are liable to GST। तो देखो, ये कभी बोल सकते ब्रिटिश हाई कमिश्नर, कभी बोल सकते अमेरिकन हाई कमिश्नर। सर हाई कमिश्नर से कुछ नहीं होता है। हमने ये देखा है कि भाई साहब, अगर आप लोग जो है वो कोई एडवाइजरी सर्विस ले रहे हो, स्टूडेंट तो क्या वो कोई भी बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट तो कैसे बनेगा, एडवाइजरी ले रहे हो तो वो GST में आएगा। ठीक है, इसका अगर आपको प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है ये देखना है ना, तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि एग्ज़ाम में अगर पूछे, वैसे तो ऐसा पूछते नहीं है, प्रैक्टिकल में ही आता है। ये देखो, सर्विस बाय नहीं, अच्छा, सर्विसेज बाय अ डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया आर एग्जिम्ट फ्रॉम GST। तो उन्होंने बोला सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन। सर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का मतलब जो है, ये वही जो उस क्वेश्चन में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई वो लोग जो है वो इसलिए आए हैं ताकि वो काउंसिल कर सके और UK में जाने के लिए कैसे स्टडी का बता सके। तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन के थ्रू foreign diplomatic services by a foreign diplomatic mission located in India are exempt from GST। ठीक है, hence in the given advisory services by British High Commissioner located in the Delhi to the students are exempt from GST। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, हम लोगों को ये सर्विस तो पता है कि सर्विस बाय, और कई बार एग्ज़ाम में यहाँ लिखा होता है सर्विस टू। तो आपने अगर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को सर्विस दी है तो पक्की बात है वो एग्जिम्ट नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने आपको कोई सर्विस दी है तो वो एग्जिम्ट हो जाए। अब वो लोग होते कौन है, उसको इस क्वेश्चन ने अच्छे से डिफाइन कर रखा है। वो लोग होते कौन है, इसको इस क्वेश्चन ने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो क्या बोल रखा है उन लोगों ने, ये समझे। उन लोगों ने क्या बोल रखा है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर चीफ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ द UK। तो डिप्लोमेटिक मिशन के लिए वो आए हैं, डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ UK लोकेटेड इन इंडिया is providing advisory services to the student willing to travel to UK for further studies। The mission has organized a seminar। उनका मिशन है सेमिनार को ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ पर मिशन हैज़ ऑर्गेनाइज अ सेमिनार फॉर सच स्टूडेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 5,000 पर स्टूडेंट हैज़ बीन चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अगर उन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है तो वो एग्जिम्ट हो जाएगी, है ना।
तो यहाँ पर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, पक्की बात है? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ। Bhushan Biomedical West Limited is providing services of biomedical waste treatment to Vishuddhi Pharma Company. For services, Bhushan Biomedical West Limited has charged a fixed sum of monthly basis. Whether the service provided by Bhushan Biomedical West Limited is exempt under GST, obviously. Biomedical wastage जो होता है वो exempt होता है। Now, determine whether GST is payable in respect of each of the following independent services provided by the registered persons. Fee of ₹10,000 charged from office staff for in-house personality development course conducted by तो फीस जो दे रखी है उन्होंने 10,000 रुपी चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कंडक्टेड बाय मुंजीरीलाल कॉलेज प्रोवाइडेड एजुकेशन एज पार्ट ऑफ अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय इंडियन लॉ। तो यहाँ पर अगर इंडियन लॉ से रिकग्नाइज है और फ़ी चार्ज कर रहे हो फ्रॉम फीस जो आप चार्ज कर रहे हो 10,000 रुपी फ्रॉम कहाँ से? ऑफिस स्टाफ से, फॉर इन हाउस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो अगर आप उनसे कोई फ़ीस चार्ज कर रहे हो, देखो क्या होता है ना कि आप अपने स्टाफ को कोई सर्विस दे रहे हो तो वो जीएसटी से एग्जिम्ट होती है, जीएसटी से एग्जिम्ट होती है। तो यहाँ आप अपने स्टाफ को सर्विस दे रहे हो ट्रेनिंग डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर अगर आप अपने स्टाफ को सर्विस दे रहे हो तो वो भी क्या होगी? एग्जिम्ट होगी। तो यहाँ क्या आंसर निकल के आएगा? एग्जिम्ट है। ठीक है, आप लिखेंगे एग्जिम्ट फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट वन इज बस फी 2500 पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट, ऑब्वियसली एग्जिम्ट हो जाएगा। कॉलेज है ये, नहीं, एक सेकेंड है, कॉलेज बोला, रोजमेरी कॉलेज प्रोवाइडिंग द एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफाइड रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर तो हमने बोला है कि भाई साहब अगर आप अपने स्टूडेंट्स को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एग्जिम्ट है। ठीक है। हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मैसेस क्लीन वेल। अब हाउस अगर कोई सामने वाला, अगर जैसे स्कूल सर्विसेज ले रहा है क्लीनिंग के लिए, क्लीन वेल के लिए, प्ले स्कूल के लिए क्लीनिंग की, तो वहाँ पर एग्जिम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखना, इन्फो लिंक्ड सप्लाइड ट्रैकिंग अल्फ़ाबेट्स वन ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन जनरल। तो सर ये बच्चों के लिए एजुकेशन जनरल नहीं आती है, तो ये जो हो जाएगा वो एग्जिम्ट नहीं रहेगा। देखो स्कूल के लिए मैं आपको फिर बताऊँ, स्कूल में ऐसा होता है स्कूल में, ये स्कूल जो है ये क्या कर रहा है, आपको स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, फैकल्टी को कोई सर्विस दे रहा है, एग्जिम्ट है। इस स्कूल को कोई सर्विस दे रहा है तो उसमें 5 सर्विसेज लिखी हुई है। एक दे रखा है कि कोई बस की सर्विस दे रहा है, कोई कैंटीन की सर्विस दे रहा है, कोई जनरल की दे रहा है, एग्जाम कंडक्ट करवाने की, और ऐसे करके सर्विस दे रखी है। फिर उसे कैटेगराइज कर रखा है कि वो प्री स्कूल के लिए है, या कॉलेज के लिए, या अदर के लिए, ऐसा। पक्की बात है? यस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कुछ चीज़ें आप यहाँ देखिए, यहाँ पर रेंटिंग, यहाँ पर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डवेलिंग है। अगर मैं आपको रेंटिंग के बारे में कहूँ तो एग्जिम्ट हो जाएगा क्या? ऑफकोर्स एग्जिम्ट हो जाएगा। अगर आपने अपना घर किराए पर दिया, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन भी होता है तो वो भी एग्जिम्ट हो जाता है, लेकिन रेजिडेंशियल डवेलिंग का। लेकिन अगर मैं आपको रिपेयरिंग कहूँगी ना तो ध्यान रखना वो एग्जिम्ट नहीं होता है रेजिडेंशियल डवेलिंग्स का, ठीक है, यानी कि घरों का। उसके बाद आता है रूम फॉर डिवोटीज़, और रूम का रेंट 750 है, तो ऑब्वियसली 1,000 रुपये से कम है। यहाँ कल्याण मंडलम, तो यहाँ 15,000 रुपये का चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये एग्जिम्ट है, बाकी ये टैक्सेबल है। अब आता है कम्युनिटी हॉल, 7,500 का किराया, ये भी एग्जिम्ट हो जाएगा, 10,000 से कम है। शॉप
9,500 10,000 से कम है, और यहाँ पर जो है 12,000 है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। तो क्या क्या टैक्सेबल हो जाएगा, ये और ये। डन, यस सर। और 18% लगा देना, जीएसटी लायबिलिटी तुम्हारे पास आ जाएगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये बोलता है कि कुछ सर्विसेज जिसमें सबसे पहले आता है सेलेक्टर। तो हमने कहीं सेलेक्टर नहीं पढ़ा है, तो सेलेक्टर जो हो जाए वो टैक्सेबल हो जाएगा, पक्की बात है, यस सर। उसके बाद कमीशन आपने रिसीव किया एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। सर अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से एज ए इंश्योरेंस एजेंट कमीशन रिसीव किया है तो आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम में पे करती है, तुम्हें तो पे करने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट चार्ज एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर द, सर यहाँ बिजनेस करस्पॉन्डेंट चार्ज कर रहा है, ये हमने पढ़ा है कि एग्जिम्ट होगा, लेकिन कब, जब अर्बन ब्रांच ना हो, जब रूरल ब्रांच हो। यहाँ पर अर्बन लिखा हुआ है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, आपने अभी अभी पहले चैप्टर में पढ़ा है कि सर्विस बाय होना चाहिए। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन हमें सर्विस देना होता चाहिए, हम उन्हें नहीं, तो सर्विस टू, ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा, लिख दो फटाफट। नेक्स्ट, ये वाली तो है ही नहीं, जीएसटी के अंदर शेड्यूल 3 से ही बाहर निकाल रखी है इसको। फिर आता है, इन्होंने बोल रखा है कि जीटीए, तो जीटीए में आप लोग टैक्स पे करोगे, वो भी 5% से, तो यहाँ पर सिर्फ 5% का रेट लगाना, और यहाँ पर जो रेट है वो कितना लगाओगे, 18% लगाओगे, तो यहाँ पर जितना टैक्सेबल बताया उस पर 18% की रेट लगा देना, पक्की बात है, यस सर। नाउ नेक्स्ट पर आओ। विविध लिमिटेड के बारे में इन्होंने बोल रखा है कि सर्विसेज एज ए प्रोवाइडेड लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर, ये देखो, रिपेयरिंग अ सिंगल रेजिडेंशियल, मैंने बोला ना रेजिडेंशियल यूनिट की रिपेयरिंग जो होता है वो जो है वो आपका एग्जिम्ट नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन एग्जिम्ट हो जाता है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब आता है फी रिसीव फ्रॉम अ स्टूडेंट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी, तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर 4 बसेस है, ईच बस सीटिंग कैपेसिटी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, अगर आपने 12 ज़्यादा की कोई बस जो है वो क्या करी, हायरिंग पे दिए, वो एग्जिम्ट हो जाता है। यहाँ तो 72 पैसेंजर कैपेसिटी है। रेंट पेड टू लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर प्रीमाइसेस टेकन ऑन रेंट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये जो हो जाएगा, आपने जो क्या किया, रेंट पेड, तो लोकल म्यूनसिपल, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ना, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है जीटीए, तो जीटीए खुद 12% से टैक्स दे रहा है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये देख लेना और तुम्हारा रेट जो है वो लगा देना, ठीक है। अब आता है चाणक्य एकेडमी के बारे में। देखो सबसे पहले ये समझना कि ये बोल रहा है KIT मने कॉलेज, ये बता रहा है कि मने स्कूल, ये बता रहा है कि एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और ये SM जो है वो क्या है, 12वीं तक का स्कूल है, CBSE बोर्ड का, हाई सेकेंडरी, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, क्या पता चला, ये CLG है, कॉलेज है, ये जो है वो स्कूल है, ये जो है वो क्या है, इंस्टीट्यूट है, और ये जो है वो क्या है, इंस्टीट्यूट मने आप समझो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और ये जो है वो स्कूल है। अब देख लो क्या क्या सर्विसेज, प्रिंटिंग सर्विसेज ली, सर पेपर के लिए प्रिंटिंग सर्विसेज ली, तो पेपर के लिए अगर प्रिंटिंग सर्विसेज ले रहे हो तो स्कूल कौन कौन एग्जिम्ट हो जाएगा, मतलब आप एग्ज़ाम से रिलेटेड सर्विस ले रहे हो, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने रिलेटेड, तो मैं बोलूँ ये टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी तो एग्जिम्ट, ठीक है। अगर पेपर प्रोक्योर किए, सर गुड्स है, ये तो गुड्स है, तो क्या होगा, गुड्स तो हमने सर्विसेज पढ़ी है, सब टैक्सेबल मार दो, ठीक है। यहाँ पर पेपर सेटलर को पैसा दे रहे हो, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि भाई कॉलेज दे रहा है, एग्जिम्ट कर देंगे। अब आता है रेंट फॉर एग्जाम सेंटर लेने के लिए पैसा दिया, ये प्राइवेट वाले का टैक्सेबल हो जाएगा, इस कॉलेज वाले का एग्जिम्ट हो जाएगा। सब ऑनलाइन जनरल, सर ऑनलाइन जनरल किसको ज़रूरत होती है, कॉलेज वालों को चलेगा, एग्जिम्ट कर देंगे, कॉलेज वालों को चलेगा, स्कूल वालों को कौन से, स्कूल वालों को नहीं चलता है भाई, यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट को भी नहीं चलेगा, ये तो इसको भी नहीं चलेगा, ठीक है। जनरल जो होती है वो कॉलेजों के लिए है। हायर चार्जेस फॉर बसेस, तो देखो बसेस किसके लिए, कॉलेज के लिए भी नहीं है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी, स्कूल के लिए है, इसके लिए भी नहीं है, और स्कूल के लिए है। कैंटीन सर्विसेज फ्रॉम रनिंग द कैंटीन, तो सुनो कैंटीन किसके लिए है, कैंटीन ABC, कैंटीन कॉलेज वालों के लिए है, स्कूल वालों के लिए भी है ना, कैंटीन तो उनके लिए भी है ना। सिक्योरिटी कैंटीन, बोले कैंटीन सिर्फ स्कूल वालों के लिए है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्या हो रहा है, ये टैक्सेबल, ये स्कूल वालों के लिए एग्जिम्ट, ये इनके लिए टैक्सेबल, और फिर ये स्कूल वालों के लिए एग्जिम्ट, ध्यान रखना कैंटीन की सर्विसेज। देन सफाई वाले की सर्विसेज किसके लिए एग्जिम्ट है, सिर्फ स्कूल वालों के लिए ना, स्कूल का, ये स्कूल है और ये स्कूल है। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज, तो वो भी प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स है ना। तो यहाँ पर
प्री और हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जिम्ट किधर है? ये तो है KIT कॉलेज, इसको टैक्सेबल हो जाएगा, ये एग्जिम्ट है। और ये एग्जिम्ट है। और ये एक्चुअली उन्होंने बोल रखा है कि हाउस कीपिंग सर्विसेज में 80,000 पेबल टू सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग एट स्टूडेंट्स। तो ये जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 80,000 जो होगा ना 80,000 वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी तो एग्जिम्ट है ही है। दैट इज़ ऑल ओके। ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर डन। एक बार चेक करवाऊँ तुमको आंसर, लास्ट वाला करवा देती हूँ। चलो ये देखो, प्रिंटिंग सर्विसेज की रिलेटेड टू एग्ज़ाम से ये एग्जिम्ट हो गया। ये ब्राइट इंस्टीट्यूशन है टैक्सेबल, ये एग्जिम्ट हो गया। ये टैक्सेबल हो गया, ये टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल हो गया, ये तो है ही नहीं था, ये एग्जिम्ट हो गया, या कुछ था ही नहीं, ये एग्जिम्ट हो गया, यहाँ पर टैक्सेबल हो गया, ये डन।